This is Rahul Mehta, the founder, CEO and editor of Bikers Club Network और आप मुझे सुन रहे हैं On Candid Talks with Bharat V. Hello and welcome to another episode of Candid Talks with Bharat V. This is Bharat Vatsa, your host of the show, and in today's episode, we will be talking to Rahul Mehta, who is the founder, CEO and editor of Bikers Club Network. He is one of the passionate bike enthusiasts who thought of bringing the entire biking community across the globe together. And today, with his dedication, Bikers Club Network has around 0.25 million followers across the globe in a span of 1 year. Please do listen to this episode till the end. Before we begin, please do not forget to subscribe to this podcast, and you can connect with me on my Facebook page at Candid Talks with Bharat V. So let's welcome Rahul Mehta. Hi Rahul, thank you so much for taking out time and joining us on this podcast show. It's my pleasure. It's my pleasure that you invited me, and I feel very top of the sky that I feel worth. I feel worth that the kind of show that you are organizing, and you have find the worth in me. That's why I'm on your platform. It's my pleasure to in fact invite you and host you on the show. So. Thank you very much. It's like it's a long journey. I mean, we know each other since long now, but yes, now finally it's on virtual media, and it's good. It's good to have you, and it's good to interact with you. Same passionate guy, what I share. Thanks. So, how are you putting up in this pandemic situation? What's been keeping you busy? See, if I tell you, then I would say the pandemic has been fortunate for me. Okay. I understand that entire world is fighting with this, and it's very sad that suddenly all of this came in our lives, and we have been, forcefully house arrest. Okay, correct. But as we say, every pandemic or every problem comes with the solution and the opportunity. Absolutely. So with this thing, if you have noticed that many people have started going virtually. Many IT sectors boomed up, and many people like Instagram Live, Facebook Live, this Zoom. Zoom was once upon a time, Zoom was crashing up, okay, and Zoom was bankrupt in a verge of. Now suddenly this pandemic have they made this $1 billion company. So if I would have to say that this pandemic kept me busy in terms of this live shows, in terms of this internet outburst. So, and Bikers Club branding has, excelled, I would say, within just 3 to 4 months, because we got time. And so as all our riders were house arrest and they had nothing to do, and they just, my shows kept them intrigued, I would say, and they bared with me. वो लोग ने मुझे हिला. So I would say that this is something it's not that I grabbed the opportunity. It's like it came this way, and I thought, let's do this. And you would be surprised that I did almost around 50 plus shows. Wow! In this 4 months. Okay. And 26 to Instagram, and then debate, and then this talk shows, and some Zoom interactions. So I would say 50 plus shows I've done till now in 4 months. So I would say, yes, it's something that sad we all are fighting in the situation like this, but some industry has totally erupted with this and gone up. So I would say this way. And somehow, then this pandemic, somehow I feel that it's becoming more and more busier for us, with this internet outburst, as you said. And I somehow can correlate this with the year 2000 when, there was an era of Y2K. Yes. So it's something on those lines. Now everything everything is being tried, and everyone is trying to go online, and even trying their work and everything they are trying to do online. So but I would say
It's a vice versa, but see, online is outburst. That's true, but the Yeah. frustration level is going up because people Yes. initially in first month it was okay. People were enjoying कि चलो उनको time मिल गया and they were chilling and all. But Yeah. then slowly jobs gone down and people Yes. got half the salaries and all. Now the frustration level is gone up. People are Yeah. frustrated. If you see, look around what is happening in the society. Plus, patience level have reduced like anything. On छोटी छोटी बातों पे Absolutely. now people are fighting for because it's not that they want to fight, but because frustration. All are Yeah, it's frustrated. not just physical. I think it's more of a mental challenge as well for every individual, I guess, which they're Correct, fighting with. correct, Yeah. correct, correct, correct. That's true. So I just Yes. hope everyone gets over this pandemic very soon. Yes, I Let's really hope wish for the for that. best. I Yeah. really wish. Yes, yes. हो जाएगा. I mean, I would say कि Yep. it's see if you go back to the history, I mean every the 18 and 20. I mean, I would say if you go back to 1918, there was Yes. again a pandemic, Correct. plague. I suppose Yes. plague was there. Yeah. If you Yeah. go back to 1820 or 1818, there was something kind of a same situations. Okay, so Absolutely. this is every century once this comes and Yeah. I don't know somehow it is between 15 to 20 the 5 years I mean Hmm. let's suppose 1815 to 1820, 1915 to 1920. Now this is 2020. Okay, Yeah. Yeah. so and we are unlucky that our generation has to face this. Yes, Yeah. this is Yeah. something. So Rahul, you have tried your hands. Let's go little bit into your life now. So you have tried your hands in various different fields. You started with modeling, and then you were into Mm, film line as well, and then mm, I mm, think you started with Bikers Club Network. So mm, Bikers Club Network, we'll talk about that a little bit later. So mm, tell us mm. something about our your life journey so far. For our See, listeners. I'll tell you very good, interesting question because I actually know very few people knows this that what I have done and what I'm doing. Right? I mean, Hmm. I'm doing. Everybody knows it, but I started at the age of 15. Okay. I was a traveler. I mean, my family have given me the freedom that whatever you want to do, you do it. Okay, but just do it with the passion and the focus. So I started traveling with the like I was a model. I started doing that. With the modeling assignment, I had to travel. So in India, I Okay. have traveled a lot. Okay, then eventually, see, every people have their journey. I Hmm. was searching for something that okay, what is interesting? What is in it's giving me intrigue that feeling. So when I was doing a modeling I was like okay, this is not for me. I mean this is something okay, I do it, I get money, but I'm not enjoying. Then Right. I was always a technical guy. Then I started I tried for direction. Okay, Okay. so no, before direction from modeling I tried for acting. Okay, Okay. I have done many theaters. I have done, Acha, recently you I have did a done theaters also. theaters. Okay. Yes, I've done theaters. Okay. So recently I did a talk show with Aditya Raj Kapoor, okay, son Yeah. of Shami Kapoor. Hmm. And uh, in Mumbai, there is a very famous theater called Prithvi Theaters. Yes. And yes, so it's very famous for theater artists. And my college, I studied in Mithipai College, and it's very near. Okay, one of Okay. the famous college, and I think half of the Bollywood comes from that college. Yeah. So I started doing theaters, and I was doing such a good there. I mean, I within 1.5 years time, I was general secretary of my college, Mithibai College, and I have done many inter-college dramatic competitions and all. So Okay. that was there. So I was getting fame also, but Hmm. still I was not satisfied. I was like, कि यार ये मजा नहीं आ रहा है, Something something is different missing. missing, something is Yeah. missing. Yeah. So then one point of time, I still remember there was a film called Kuch Na Kaho with Okay. Aishwarya, Abhishek Bachchan, Yeah. and that star cast. Hmm. So one of my friend was associate director there. So I just Okay. happened to meet him, and I said, "That it's interesting." He just called me to see the shooting. Okay, Okay. so Okay. it was in Film City, Goregaon, Mumbai. I Hmm. just went there, and I was so intrigued there. No, this is something which I really would like to go for it. And I told my friend that, यार मुझे सीखना है direction.
I just want to Okay. go for assistant direction. He was like, okay, we were looking for someone, and he asked the director that this is the guy, this is my friend, and he's very hardworking, and why can't we have him in our team? So Mhm. director said, okay, no problem. Then that's how my direction journey began, Okay. and I did entire film there, and I shared a very good rapport with Aishwarya Rai at that time, Abhishek Bachchan, and I found my space there. That Okay. okay, this is something which is interesting. Okay, so then there was no looking back. I did back-to-back films. Like I did Kuch Na Kaho, then Bluff Master, then No Entry, then uh, Sing is King, and Mhm. then I did a film. Then I went to Hollywood. Okay, Okay. then I did a film there, Seeking Victory. It was I would say Indo-Canadian film, but it was Okay. shot in Hollywood. So Okay. I was there for 1 year there, and I did film there. Then I did some short films over there, short films and documentaries, and Mhm. I would say I was there for 1.5 years in US. Okay. Then came back. Then again for shooting purpose, I had to go. I had to travel a lot out of India. Mhm. So this gave me exposure. Mhm. I learned a culture over there. And my tendency, whenever I used to go for a shooting, so shooting generally होती है 8 घंटा 9 घंटा. तो Yeah. public जाती है सो जाती है. I was not that way. I used to roam, and I Okay. used to go in a public transport, and I used to travel there. I used to learn this. Then वो direction growth हुआ उसका. Then I came back. Then I started writing my scripts. Okay, I said okay. I have pretty decent experience now. 6 7 films I've done. So now Mhm. let's do something on my own. So I started writing scripts, and very good script. I mean, I wrote it, and I hired a writer also to finished it properly. Okay. Okay. And एक दो writer involved हुए. I suppose the film's name is Sicko, Okay. Sicko. Okay, Okay. still there with me, and it was I got very good response with the script. And Mhm. again, when I used to approach directors and approach producers to finance this, they were like, okay, I loved your script, but okay, you just sell off, Okay. and Yeah. we will take over this project. I Okay. said, no, this is my baby, and I want to do it, and I don't want to just give away like this. Right. And I was hell bent on it. Mhm. But yes, eventually one person have tried to snatch my idea, but he could not. He Okay. announced the film, okay, on a different name, Mhm. but I was registered. I have a tendency that I everything I do I register Okay. in association. I'm still a member of Film Directors Association, Film Producers Association, Film Writers Association. Okay. I have two production companies in my name. Okay, Okay. so I did that. Then I claimed it that this is my film and you can't just copy this way. So I Mhm. had to stop them. Oh. That happened. Okay, Okay. that happened. Then then I started writing one comedy film. क्या होता है कि जब चांस नहीं मिलता है, स्ट्रगल चलती है, Yeah. तब Yeah. लोग सोचते हैं चलो ये नहीं तो कुछ और सही. Because Right. that film Sicko was the film जो around that time I'm talking about in 2009, it was budgeted around 6 to 7 crores. Okay, Okay. और उस टाइम पे वो हाई बजट था. देन आई स्टार्टेड कि यार एक छोटा सा लो बजट फिल्म बनाते हैं. सो Mhm. आई थॉट कि 1.5 2 करोड़ का फिल्म बनाते हैं, एंड दैट वाज अ कॉमिक फिल्म. अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक. गांधी जी और एंड नेल्सन मंडेला के ऊपर फिल्म थी. अच्छा. बिकॉज वो तभी उस टाइम पे नेल्सन मंडेला की डेथ हुई थी. ओके, Okay. तो आई थॉट लेट्स डू समथिंग ऑन दिस बोथ पर्सनालिटीज, बिकॉज आई रिसर्च अ लॉट. सो Mhm. मुझे लगता था कि नेल्सन मंडेला वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी philosophy. Yeah. Eventually, he was not. He was a boxer. Boxer था. Then he fought against साउथ अफ्रीकन जो रेवोल्यूशन हुआ था. देन Right. ही थॉट कि गांधी की फिलोसफी चलेगी नहीं, तो उन्होंने गन उठा ली, हथियार उठा Okay. लिए, और उसकी Okay. वजह से उनको 27 साल जेल हो गई. ओके, Hmm. देन जेल के अंदर उन्होंने गांधी फिलोसफी वापस ही अडॉप्टेड, एंड देन Okay. रेस्ट इज द हिस्ट्री. सो आई थॉट लेट्स डू समथिंग दिस कॉमिक वे. ओके, Okay. वो भी हुआ, एंड उसको भी कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला. ओके, अच्छा. सो मैं बोला कि चलो यार अभी कुछ करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. Oh. देन आई देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड रेडी, सलमान खान की फिल्म थी. Yeah. Yeah. तो
डायरेक्टर वॉज माई फ्रेंड एंड ही सेड राहुल अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा तो लेट्स डू दिस फिल्म, तू आ जा एज अ को डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर के हिसाब से आ जा। आई सेड ओके चलो कुछ नहीं तो करते हैं। एंड फ्रॉम रेडी इट ऑल बिगेन। देन अगेन सलमान खान के नेटवर्क में आया, देन वी दैट फिल्म वेंट अराउंड 1.5 ईयर वो बनने में लग गया एंड वो पूरा एक एक्सपोजर हुआ। एंड उसमें सलमान खान से मेरा एक अच्छा रिलेशन हुआ। सलमान ने बोला कि राहुल दैट्स इनफ नाउ, यू हैव डन मेनी असिस्टेंट जॉब, नाउ यू डायरेक्ट योर फिल्म, यू गो बैक टू योर स्क्रिप्ट्स एंड डू समथिंग। अब बोलने के लिए तो आसान था, ही नेवर सेड दैट चले यार राहुल तू फिल्म बना मैं कर लेता हूँ ऐसा तो नहीं था। बट यस ही न्यू मी, स्टिल ही नोज मी। अगर मैं कभी जाता हूँ तो ही रिकग्नाइज मी, नाम से बुलाता है सब चीजें। सो but yes, then again my journey started in 2011. okay, मैं सोचा चलो अभी 1-2 साल और देते हैं, इसमें कुछ करते हैं। और करते 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 then एक अपॉर्चुनिटी आ गया मुझे कि इवेंट करने का, इवेंट्स। ओके सो आई सेड चलो लेट्स डू समथिंग, मतलब कि इवेंट्स तो इवेंट्स से ही, फिल्म तो चली रही है साथ में इवेंट्स भी करते हैं। तो somehow I joined आईफा को भी मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे काफ़ी एक्टर्स के साथ इंटरेक्शंस हुआ, काम हुआ। देन इवेंट्स आईफा के साथ भी घूमा मैं, फिर छोटे छोटे दूसरे इवेंट्स किए। देन आई स्टार्टेड माय ओन इवेंट कंपनी इन द नेम ऑफ आर्ट हाउस प्रोडक्शंस। सो आर्ट हाउस प्रोडक्शंस मेरा खुद का कंपनी था। एंड ऑन दैट कंपनी, इन दैट कंपनी मैंने एक यूथ फेस्टिवल महाराष्ट्र के जो होते थे गवर्नमेंट फेस्टिवल्स, सह्याद्री से लेके काफी सारे फेस्टिवल्स थे, यूथ फेस्टिवल्स, जो आई डायरेक्टेड। एंड आई डिड अराउंड 7 to 8 यूथ फेस्टिवल्स विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और वो एक हुआ, और उसके बाद इवेंट की लत लग गई। फिर बहुत सारे म्यूजिकल इवेंट्स किए। फिर आई वाज अ पार्ट ऑफ योर NH7। ओके सो NH7 का भी मैंने किया। देन एक इंडी बैंड करके एक इवेंट था जिसमें 10 डिफरेंट जो बैंड्स थे, म्यूजिकल बैंड्स, उनके साथ मैंने एक इवेंट किया बॉम्बे में, मुंबई में किया। एंड इट वाज सुपर हिट। और मैं काफी अच्छा खुश था कि चलो बहुत अच्छा हो रहा है, अभी फाइनली कुछ तो सेटल हुआ है। फिर एक बार मैंने एडवर्टीजमेंट देखी वेबसाइट पे कि अबू धाबी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उन लोग को कुछ रिवैम्प करना, अपना पूरा फेस्टिवल को एक अलग से एक शेप देना था। अब देखो आई एम लाइक चलो रिस्क उठाते हैं, क्या अबू धाबी में तो कोई जानता तो है नहीं मुझे। सो आई सेड जस्ट चल कुछ करते, कुछ एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। लगा तो तीर वरना तुक्का है, चलो देखते हैं। Okay, so I made a presentation. You won't believe the presentation is still with me. I spent around 2.5 lakhs rupees on that presentation, especially for that presentation. पूरा वीडियो इतना बनाया, ऑडियो रिकॉर्ड करवाया मैंने प्रॉपरली, गाना पूरा रिकॉर्ड करवाया। एंड इट वाज जो सिंगर है जिसने मेरा गाना गाया था उस टाइम वो स्ट्रगलिंग थी, और आज वो काफी नाम वाली सिंगर है। ओके, उसका नाम है अनीशा साकिया, आसाम से है। एंड शी इज डूइंग वंडरफुल नाउ। एंड एक रैप करवाया था मैंने उसके अंदर, फिल्म्स के नाम का रैपिंग था। ओके, इफ यू वांट आई विल सेंड इट टू यू। तो वो हाँ, तो वो रैपिंग मतलब इट वाज सो इनोवेटिव। वो रैपर जो था वो बहुत डर गया कि यार फिल्म के नाम का रैपर कैसे करूंगा मैं, लेट्स डू समथिंग, चलते कुछ करते हैं। एंड बिलीव मी 1 घंटा हम लोग ने ब्रेनस्टॉर्म किया एंड ही वाज रेडी विद द स्क्रैच। इम्प्रॉम्प्टू हो गया था, उसने मेरे को बुलाया कि लेट्स जस्ट लिसन टू दिस, और मैंने 1 गो में ओके कर दिया कि हाँ दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। और उसके बाद हम लोग ने विद इन अ वीक्स टाइम वी हायर्ड अ स्टूडियो, लेट्स रिकॉर्ड इट। वो दोनों का फर्स्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग था, वो दोनों का फर्स्ट स्टूडियो रिकॉर्डिंग था। एंड दैट वाज इन लता मंगेशकर का स्टूडियो में, लता मंगेशकर स्टूडियो, जहाँ पे AR रहमान बहुत रिकॉर्डिंग करता है मुंबई में, जब भी आता तभी। तो वहां पे रिकॉर्डिंग किया। तो अनीशा जो थी, उसको एनी करके बुलाते हैं, वो काफी प्रोफेशनल थी। उसने छोटे मोटे शोज किए थे, स्टेज शोज किए थे, तो शी न्यू। तो उसने 5-6 टेक लिए, इट वाज थ्रू। एंड आई स्टिल रिमेम्बर रात को 1-1:30 बज गया था। ये बंदा, अब यू नो हाउ रैपर्स आर, थोड़े से अपने धुन में रहते हैं। आया वो, मैं थोड़ा सा ये था कि उसका पहला रिकॉर्डिंग है, थोड़ा टाइम लगा। और स्टूडियो में क्या था, आवरली बेसिस पे चलता है, स्टूडियो हायर करते हैं तो वो हायर करना आवरली बेसिस पे रेंट चलता है। मैं लगा कि भाई पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेट्स डू। मैं बोला चल तू मार, जो भी तैयार हो जाए, एंड देन लेट्स डू इट। ही रिकॉर्डेड एंड फर्स्ट टेक में ओके हो गया। वेरी फर्स्ट टेक में उसने जो गाया वो चार्ज्ड अप था, इतना गाया मतलब कि भाई इसका सेकंड टेक हो ही नहीं सकता है, ओके कर इसको।
फर्स्ट टेक में ओके, एंड नाउ ही इज अ वेरी वेल नोन रैपर इन LA, लॉस एंजलिस में अभी। उसके बाद वो चले गया लॉस एंजलिस, और वहाँ पर रैपिंग का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उसने सीखा प्रॉपरली रैपिंग वैपिंग। नाउ आई वुड नॉट से वेरी वेल नोन, बट ही इज अ नोन पर्सन, What is रैपिंग his कर name? रहा है। और उसका नाम उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ, अभी उसने कुछ अलग नाम रख दिया है। अभी उसने उसका अपना नाम क्रिश समथिंग तो कुछ रखा है, उसका नाम अलग था। ओके, अच्छा। आई जस्ट वांट टू जस्ट एक्सप्लोर उसका नाम अभी उसने क्या रखा हुआ है। But that time he was known as what? उसका नाम संकेत था, संकेत, Oh, जो okay. महाराष्ट्र का संकेत था उसका नाम। Okay. एंड नाउ उसने कुछ, अभी रैपर लोग के अपने अपने नाम हो जाते हैं, तो उसने Right. कुछ सी पे से कुछ नाम रखा, क्रिश और समथिंग कुछ तो रखा हुआ है। बट ऑल ऑफ अ सडन मैंने उसको इंस्टाग्राम पे देखा, मैं बोला कि यार ये तो पूरा संकेत, उसको सैंकी बुलाते थे, संकेत है, वही लग रहा है। पूरा लुक चेंज, पूरा एकदम रैपर अच्छा। काइंड ऑफ अ लुक। मैंने जस्ट उसको मैसेज किया कि आर यू संकेत बाय एनी चांस? ओके, ही वाज शॉक कि संकेत वाला कौन आ गया। फिर ही लुक्ड इन टू माय प्रोफाइल, अरे ये तो राहुल है। ओके, बोले हाँ हाँ आई एम संकेत, ओके हाउ आर यू एंड दिस एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट ये 8-9 महीने पहले की बात है। देन आई अच्छा। रियलाइज कि अरे यार इसने इतना सब कुछ कर लिया। ही Wow. रिकॉर्डेड हिज एल्बम एंड ही इज डूइंग गुड जॉब। तो वैसा है। तो मैंने जिन जिन अच्छा। लोगों को टच किया है ना भरत, जिन जिन लोगों हम्म। के साथ मैंने कुछ क्रिएटिव काम किया, दे आर वेरी बिग नेम नाउ। ओके, एटलीस्ट कंसिडरेबली बिग, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सुपर हिट है, बट Right. कंसिडरेबली वेरी Okay. बिग। सो एंड दे ऑल रिस्पेक्ट मी, और दे ऑल से कि जब भी तुम्हारा कुछ रहेगा टू कॉल अस, हम लोग करेंगे। That's ओके, nice. सो वो चीज हुआ, रिकॉर्डिंग हुई। अब सी माई जर्नी, आई डोंट नो एनीबडी इन अबू धाबी। ओके, हाँ। दुबई में एक मेरा फ्रेंड था जिसको मैंने बोला यार एक काम कर, मैं दुबई आ रहा हूँ। ओके, एंड ही वाज वेरी गुड फ्रेंड, ही स्टिल आर। सो ये बोलता है कि तू आजा मेरे घर पे रह जा। मैंने ठीक है चलो मैं आता हूँ। मुझे सिर्फ, मैं उसको बोला कि कोई तू जानता है मिनिस्ट्री में अबू धाबी, क्योंकि वहाँ पे किंगडम है, तो वहाँ पे सब मिनिस्ट्री भी सब Yeah. राजा लोग के इसमें चलती है। Yeah. किसको जानता है? बोलता है कि मैं ऐसे डायरेक्टली किसी को नहीं जानता हूँ, बट आई नो अ पर्सन जो तुझे प्रॉपर चैनल बता सकता है। Okay. सो आई सेड ओके चलो मैं आता हूँ, लेट्स एक्सप्लोर इट। मैं 2.5 लाख का प्रेजेंटेशन लेके पहुंच गया वहाँ पे, किसी को जानता नहीं है। हालांकि वेबसाइट पे मैंने अपॉइंटमेंट की, अप्रोच किया था, सब चीजें किया था, बट यू नो अब यार मैं कोई शाहरुख खान तो हूँ नहीं कि सलाह उसको बुला Right. ले, हाँ आ जाए। Yeah. ओके, Yeah. ठीक है देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे आफ्टर अराउंड अ वीक्स टाइम और 10 days टाइम इन दुबई, मुझे एक लिंक मिली जो Okay. थी, जैसे यहाँ पे अजीत डोभाल के से नेशनल सिक्योरिटी, वैसे ही वहाँ पे जो किंगडम है उसका जो नेशनल सिक्योरिटी था, उसका लिंक मिला मुझे। अब Okay. मैं बोला चल जो मिलता है उससे मिलते तो है, कुछ तो रास्ता निकलेगा। कि वहाँ पे जो अबू धाबी जो कंट्रोल करता है, जो भी फिल्म वहाँ पे शूट होती है, वहाँ पे कंपनी है 2454। Okay. वो कंपनी है, वो उसकी जो नोरा करके उसकी हेड है, नोरा जो चलाती है। सो मुझे वहां तक पहुंचना था उसके पास, क्योंकि उसके पास ही कंट्रोल था अबू धाबी फिल्म फेस्टिवल का। Okay. तो मुझे समहाउ उधर पहुंचना था। तो मैं अब दुबई से गया अल एन, अबू धाबी अच्छा। भी नहीं, अल एन। अल एन एक ऐसा है वहां पे जो पूरे यूएई का जो मिनिस्ट्री है ना, जैसे यहाँ पे दिल्ली है ना, Yeah. वैसे अलेन है वो। 7 स्टेट्स है, 7 कंट्रीज है यूएई, तो उसमें अलेन करके जो एक कंट्री है, छोटी सी है, वो पूरा Okay. यूएई का मिनिस्ट्री समझ लो, कि वहाँ पे Okay. सब मिनिस्ट्री लेवल के वहाँ पे होती है। तो मुझे वहाँ बुलाया। मैंने चलो जाते वहाँ पे, क्या करते हैं। मैं अपने फ्रेंड को बोला चल यार तू फ्री है तो आजा मेरे साथ, तो वो भी आया। तो मैं लाइक चल जाते हैं। अब उस बंदे ने मुश्किल से मेरे को 15 मिनट दिया था कि भाई तू कौन है, मैं जानता नहीं हूँ, पर ठीक है तू इंडिया से आया तो चल, तेरे को दिया 15 मिनट। और मैं Okay. पूरा प्रोजेक्टर के प्रेजेंटेशन के साथ पूरा एकदम से तैयार था। एंड आई जस्ट सेड के ओके 15 मिनट्स आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, सब शांति से देख रहे हैं। एंड मेरा प्रेजेंटेशन मैंने 15 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया। Okay. देन ही वाज सो इम्प्रेस्ड, ही सैट विथ मी फॉर 2 hours। Okay. उसने जब 15 मिनट दी थी, उसने 2 घंटा मेरे साथ बैठा एंड बहुत सारी बातें की। वो बोला कि शाहरुख मेरा फ्रेंड है, ये जब भी आता है मेरे को मिलता है, ऐसा वैसा सब बातें। मैं ठीक है अच्छी बात है। तो मैं उसको बोला कि भाई मुझे यहाँ तक पहुँचना है 2454। तो वो बंदा फिर नीचे आया मेरे साथ, उसकी ऑफिस छोड़ के। ओके, ही इज स्टिल माई फ्रेंड। Okay. ही इज इन माई टच।
तो उसने बोला कि एक काम करता हूँ, वो जो 2454 है वो एक जो यहाँ पे भी कैसे कांग्रेस बीजेपी पार्टी जैसा रहता है, तो Yeah. वहाँ पे पार्टी सिस्टम नहीं है, बट वहाँ पे एक मिनिस्ट्री का अलग अलग फंडा है उनका। ओके, Right. सो वो बोलता है कि देख ये जो जिसके अंडर में आते हैं ना, ये लोग हमारे थोड़े से राइवल टाइप्स के। ओके, Okay. Okay. बट स्टिल आई विल गिव अ लिंक जो तू उसके थ्रू पहुंच सकता है। तो उसने मुझे वहां पे सब फिरंग लोग हैं जो भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे ना, सीईओ हो या जो भी हो, दे ऑल आर फॉरेनर्स। ये लोग तो सिर्फ Okay. जो अरब अरब लोग हैं ना, वो सिर्फ बैठते हैं, कुछ नहीं करते हैं। Hmm. ये सब फिरंग लोग ही संभालते हैं। तो उसने मुझे उसके सीईओ का मुझे नहीं, सीईओ नहीं, उसकी पर्सनल असिस्टेंट, उसका मुझे कांटेक्ट दिलाया। अब मैं बैठा हूँ अबू धाबी में, मैं सीधा गया अबू धाबी, होटल में था। 3 दिन मेरे को नचाया उसने Okay. अपॉइंटमेंट के लिए। मैं मेल पे मेल ठोक रहा हूँ अपॉइंटमेंट। फाइनली उसने अपॉइंटमेंट दी मुझे। ओके, एंड शी वाज आल्सो इम्प्रेस्ड। देन मैं नोरा को मिला फाइनली आफ्टर अराउंड 17 डेज, मे बी 17-18 डेज इन अच्छा. यूएई मुझे मिली। And she liked the presentation. She said कि see, because you don't have in India, तुम्हारा इतना कुछ बड़ा ऐसा कंपनी नहीं है वेल नोन जिसका कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और ये सब कुछ हो। बट Yeah. येस, आई विल पुट यू टू द क्रिएटिव टीम बिकॉज आई लाइक्ड योर प्रेजेंटेशन एंड द वे यू आर पोर्ट्रेटिंग। आई विल आई कैन पुट योर कंपनी इनटू क्रिएटिव। आई सेड ओके, मुझे तो घुसना था कैसे भी करके। ठीक है, सो वो हुआ एंड शी वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन। आई स्टेड फॉर 40 days वहाँ पे। Okay. एंड हाँ, वहाँ पे 42 days में वहाँ पे रुका। एंड वहाँ पे सब चीज़ें प्रॉपर चल रही थी। अब देखो नसीब, देखो मेरा, वहाँ का जो यूएई का जो मेन जो किंग होता है ना, जो पूरा Hmm. यूएई कंट्रोल करता है, Yeah. ओके, नायान फैमिली में से था वो, उसकी डेथ हो गई वहाँ पे। Oh. ओके, अब मुस्लिम कंट्री है, डेथ हुई तो 40 days पूरा मॉर्निंग चलता है उन लोग का। 40 days Hmm. तक कुछ नहीं होता है। Yeah. और उसके बाद रमजान लग गया। Oh. ओके, और ये हो गया तो पूरा, मैं बोला चलो अभी इतना तो एक 40-45 दिन रह लिया है, अब रहने का मतलब नहीं है। 40 days तो इन लोग को कुछ नहीं होने वाला है, प्लस उसके बाद रमजान आ रहा है, तो और 1 महीना कुछ नहीं होने वाला है Hmm. इनका, क्योंकि Hmm. रमजान में पूरा शट हो जाता है, पूरा बंद हो जाता Right. है वहाँ पे यूएई Yeah. में। So I came back, but I kept in touch with Nora and everyone. Still some ईद वीद मुबारक का सब मैसेजेस चलते रहता है अभी भी। बट Okay. हुआ क्या, उसके बाद, उसके मरने के बाद मिनिस्ट्री चेंज हो गई पूरी, पूरी की अच्छा. पूरी मिनिस्ट्री। जैसे यहाँ पे बीजेपी आ जाती है कांग्रेस की जगह पे, वैसे Yeah. मिनिस्ट्री चेंज हो गई, तो सब शफल हो गया वहाँ पे। Hmm. एंड फिर आई कॉन्टेक्टेड, बोले कि अभी जो उन लोग ने अबू धाबी फिल्म फेस्टिवल को जो रिवैम्प करना था, दे ड्रॉप द आइडिया। Okay. अब रिवैम्प नहीं करना, जैसे चल रहा चलना। तो मेरा पूरा 2.5 लाख डूब गया उसमें। Uh-huh. सो आई केम बैक, आई सेड चलो प्रेजेंटेशन तो बना लिया, एक 2.5 लाख अच्छे प्लस लोग, आपका कितना, ऑलमोस्ट टू हाँ मंथ्स रहना वहना सब चीज, 2 months समझ लो, 50 दिन समझ लो, वो उतना मेरा गया। Okay. But I gained the experience. I always find positivity. I gained experience. I gained Right. some friends. They are still in touch. Okay. अब रोज तो बात नहीं होती, बट कभी कभार 2-4 महीने में हाई हेलो हो जाता है, Yeah. ईमेल के थ्रू हो जाता है। तो वो आइडिया ड्रॉप हुआ। आई वॉज अगेन डिवास्टेटेड। आई सेड कि अब क्या, अब Okay. क्या। तो आई जस्ट केम बैक। आई केम बैक, आई सेड चलो ठीक है, कुछ नहीं तो अपनी फिल्म्स तो है, वही करते हैं, चलो कोई बात नहीं, और इवेंट्स तो चलते रहेंगे इंडिया में। तो अगेन Right. जिम व्हेन आई केम बैक अगेन, आई लैंडेड अप विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ यूथ फेस्टिवल। आई वाज अच्छा. कॉल्ड पुणे पुणे फिल्म फेस्टिवल, सॉरी पुणे फिल्म Okay. फेस्टिवल, जो उसका अब नसीब देखो क्या स्ट्रगल होती है भरत, कभी कभी। दैट्स व्हाई आई से कि स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। Hmm. पुणे फिल्म फेस्टिवल का पूरा जो क्रिएटिव हैंडलिंग मेरे को दिया गया। Okay. यू आर इन पुणे, यू नो पुणे फिल्म फेस्टिवल Yeah. होता है। Yeah. सो उसका मुझे दिया गया, बट उसका जो हैंडलिंग, जो मेन डिसीजन मेकर है, वो मुंबई में बैठते, कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो आशुतोष घोरपड़े, ही वाज Okay. द पर्सन जो पूरा पुणे फिल्म फेस्टिवल उनके हाथ में था। तो मैं मिला और बोला कि राहुल, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर कंपनी एंड एवरीथिंग, लेट्स डू समथिंग। आई सेड ओके। पूरा मैंने उसका पूरा टोपोग्राफी बना दिया, पूना का पूरा मैप उठा लिया कि कहाँ पे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। कि फिल्म फेस्टिवल जैसे गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जैसे पुणे इज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बट उसका Yeah. इतना Yeah. लाइमलाइट नहीं है। Yeah. तो आई थॉट टू रिक्रिएट एंटायरली पूरा, सब चीज हो रही थी। और जो बंदा मुझे सपोर्ट कर रहा था, कल्चरल हेड, उसकी ट्रांसफर हो गई, Okay. आईएएस ऑफिसर, उसकी ट्रांसफर हो गई। Okay. अब गवर्नमेंट में कैसा होता है, जब एक बंदे की ट्रांसफर होती है तो उसकी जो टीम को निकाल देते हैं, फिर नया Right. टीम बैठ जाता है। Yeah.
तो वहां से भी मेरा हाथ धोना पड़ा. आई मीन आई वर्कड 6 months ऑन पुणे फिल्म फेस्टिवल, ऑलमोस्ट अच्छा. 6 months. हाँ, सो वो वहां से गया. मैं बोला कि भाई अब चलो वापस मुंबई. ओके. तो फिर मैं सोचा कि अब क्या करें. फिर अगेन जैसे मैं बोला कि बाइकर तो मैं था ही, सोलो राइडिंग करता था, मेरे पास Yeah. रॉयल एनफील्ड 350 ये सब चलता था. तो मैं ऐसे ही मैं सोचा बाइक उठाया, चलो यार बस हुआ है, चलो एक राउंड मार के आते, राइड करके आते हैं. तो मैं Okay. गोवा चले गया. ओके, गोवा गया. वहाँ पे आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं गोवा कोई बाइकिंग के पर्पज से नहीं गया था, बस मैं ऐसे ही अपना घूमने गया था. Okay. तो वहाँ पे फॉर्चुनेटली जो मंथ था वो था अक्टूबर एंड या नवंबर, जहाँ पे राइडर मेनिया होता है. राइडर मेनिया ओके. होता है. हाँ, राइडर मेनिया होता है. तो मैं तो गया था वहाँ पे मस्त में अपना एंजॉय करने के लिए. और Which मैं year was देखा it? कि आई एम टॉकिंग अबाउट 2015. 15. Okay. 15 की बात है. ओके. Okay. नो, 2014, सॉरी 2014 की बात है. ओके, 14 आई सपोज. सो ऐसा था. और मैं बोला चलो कुछ नहीं तो चलो राइडर मैंने यहाँ देख लेते, जाते अंदर. ओके. कभी मैं बाइक फेस्टिवल्स अटेंड नहीं करता था, क्योंकि मेरा बाइकिंग मेरे खुद के लिए था. मैंने कोई Okay. क्लब्स नहीं थे मेरे, ना तो Right. कोई मेरा कोई खुद का कोई क्लब था. सोलो था, बाइक चलाने का Okay. शौक था. और Yeah. चले गया राइडर मेनिया के. मैंने देखे क्या रहे राइडर मेनिया हो रहा है, चलो जाते हैं. चले गया, टिकट लिया. अब वहां पे मुझे बहुत करंट लग गया. मैं लगा यार ये तो सही है, ये इवेंट सही है. मैं सोच रहा हूँ राइडर मेनिया कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो पता है रॉयल एनफील्ड का कंपनी इवेंट है. Yeah. पर मैं वो ढूंढ रहा था ऑर्गेनाइजर कौन है. कंपनी खुद थोड़ी आके बैठती रहेगी, उसने भी कोई Right. ऑर्गेनाइजर्स को देखे रखा रहेगा. Yeah. तो मैं वहां पे ढूंढ रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजर कौन है. ऑर्गेनाइज जो जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको मैं पूछ रहा था भाई कौन है इसका ऑर्गेनाइजर. तो समहाउ पूरा मुझे एक सिनेरियो में, अब वहां पे जाके मैं ये नहीं सोच रहा था कि यार मैं एंजॉय करूं बाइक वाइक लेके सब. मैं देख रहा था यार ये इवेंट बनाया कैसे इसने, Okay. इतना अच्छा इवेंट किया है, ऑर्गेनाइज, इतने लोग आए हैं, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ यार, क्या प्रॉब्लम है. Yeah. इसमें कुछ है नहीं. अब मुझे क्या पता था कि राइडिंग कम्युनिटी में इतने सारे क्लब्स, इतनी सारी पॉलिटिक्स, इतनी सारी चीजें होती है. मैं सोचा यार करते इवेंट, चलो हो जाएगा अपने से भी. तो बोला चलो, एकदम खुश होके, पर्पस मिल गया ना मुझे. तो गोवा से वापस खुश होके आ गया मुंबई. बोला चलो Okay. अब यार ये राइडिंग इवेंट करना है, कुछ तो करना है. ओके. सो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया. अब उसका भी प्रेजेंटेशन जबरदस्त बनाया, अभी भी है मेरे पास. Okay. अब मेरा प्रॉब्लम क्या भरत पता है, मैं जब सोचता हूँ ना तो बहुत अलग बड़े लेवल पे सोच लेता हूँ. ऐसा नहीं कि मेरा ड्रॉबैक है कि यार एक छोटा सा इवेंट कर ले फिर बड़ा सोच. मैंने Right. करते तो बड़ा दिल खुल के करते, ठीक है. Yeah. सो आई सेड ओके चलो, प्रेजेंटेशन बना दिया. अब सोचा अपने इवेंट में आएगा कौन, किसको जानता हूँ मैं. ओके. Right. छोटे मोटे राइडर्स को जानता हूँ, बड़ा क्लब तो है नहीं अपने पास. Yeah. कौन है भाई, ये सब चीज Yeah. कैसे होगी. मैंने चलो इवेंट करने के लिए, क्योंकि इवेंट बैकग्राउंड था, इवेंट करने के लिए चाहिए क्या, स्पॉन्सर्स चाहिए. राइडर्स बाद में देखेंगे, पहले स्पॉन्सर्स को पकड़ते. अब मैं उठ गया, देखा, सर्च मारा कि बाइक कंपनीज किसको किसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ. और ज्यादातर सब बाइक कंपनीज दो जगह पे है, तो पुणे में है तो दिल्ली गुड़गांव में. Yeah. ओके. Yeah. तो मैंने चल पुणे से मैं ट्राई करता हूँ. तो पुणे में 2-3 जगह पे गया, तो वहां पे सब लोग ने बोला भाई हमारी हेड ऑफिस है दिल्ली में, गुड़गांव अच्छा. में, आप जाओ. अच्छा. मैं डीलर्स से मिला था यहाँ पे, गुड़गांव जाओ. मैंने चलो यार पुणे तो बाद में कभी आ जाएंगे, चलो दिल्ली, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, अब चलो दिल्ली, चलो दिल्ली. Okay. मैंने चलो दिल्ली. तो दिल्ली चले गया. अब मैंने वहां पे दिल्ली में अगे ना, मेरी जर्नी देखो, वहां पे 20 दिन में रुका दिल्ली में, 20 अच्छा. डेज. हर कंपनी विजिट किया, ट्रायम्फ से लेके, फिर ऑयल कंपनी से लेके, एपरल कंपनी से लेके, जो जो मुझे पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स मिलता था मिला. सबका एक कहना, राहुल तेरा प्रेजेंटेशन अच्छा है तेरा. और मैंने इनफैक्ट सहारा से मिला था मुंबई में, सहारा स्टार से. अच्छा. एम्बी वैली में करना था मुझे, एम्बी एम्बी वैली वैली. में. सो एम्बी वैली भी मैंने विजिट किया. एम्बी वैली का जो एयरपोर्ट स्ट्रिप था वो भी मैं सोचा कि भाई चलो ये करते हैं. और मैंने उसको टोकन मनी भी दिया, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं दिया था, Okay. थोड़ा बहुत दिया था. चल यार ये करते हैं. अब मुझे नहीं पता था कि इतना टफ पड़ने वाला है सब चीजें. तो मैं जब 8-10 कंपनी में जाके मिला रिजेक्शन, इंक्लूडिंग इंडियन मोटरसाइकिल, पंकज सर अच्छा. जिनका मैंने मैगजीन किया Yeah. था, Yeah. उनको भी मिला. रिजेक्टेड. सबका एक ही क्वेश्चन, राहुल तू फर्स्ट ईयर करने जा रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तेरा एस्पिरेशन अच्छा है, बट तू हमको ये कॉन्फिडेंस दे कि कितने लोग आएंगे राइडिंग में तेरे इवेंट में. अब मैंने प्रेजेंटेशन में लिख दिया कि इतना 100 नंबर आएगा, पर उनको पता था कि भाई इतने लोग आने वाले नहीं है. ओके. मैं तो चल गया था अपना उठा के. तो मैं सोचा कि अब ये इनको क्या आंसर दूं. तो वो बोले कि राहुल एक काम कर,
तू पहले अपना देख, कंफर्मेशन हम लोग को ईमेल पे दे कि इतने मेंबर्स तो लाएगा, इतने राइडर्स को लाएगा। ओके। बोला चलो ठीक है, अब जब वो आएगा तब मैं आऊंगा वापस तुम्हारे पास। तो मैं वापस आ गया मुंबई, 15-20 दिन रह के वहां पे मस्त में। और आया वापस तो मैं आई स्टार्टेड सर्चिंग। मैं सब फ्रेंड्स को फोन, जो जो भी बाइकर दिखा रहे, तू बाइक चलाता है, रॉयल एनफील्ड चलाता है, ये सब है, चल तेरा कोई क्लब है क्या, ये है वो है। तो छोटे मोटे क्लब्स मिले, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। बोला ओके। कि अब क्या करें। फिर सोचा कि चलो फेसबुक उठाते हैं, फेसबुक में तो सारे राइडर्स मिल जाएंगे। अब मैं जो भी प्रोफाइल देखूं फेसबुक पे जो बाइक के साथ है, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू। मेरा अच्छा। एक ये होता है फर्स्ट स्टेज। या या। ऑलमोस्ट मैंने 2,500 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। 2,500 ओके ओके नहीं, 2,500 नहीं, 2,200-2,300 के आसपास फ्रेंड रिक्वेस्ट मैंने भेजी थी। उसमें से काफी लोग आज भी मेरे दोस्त हैं। ओके। काफी लोग जो उस टाइम पे मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 नाउ। ओके, ओके। सो 15 का स्टार्ट ही था, मार्च अप्रैल की बात, फरवरी सॉरी, जैन फरवरी की बात है। तो ये ढूंढना शुरू किया, तो मुझे लगा, धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे सिर्फ कुछ कुछ लोग की सिर्फ डीपी फोटो वाली बाइक वाली है, पर उनकी प्रोफाइल देखो तो बाइक का कोई नामो निशान नहीं, कोई राइडिंग का राइट। नामो निशान नहीं। मतलब कि ये या। सारे वॉनबीज लग रहे हैं। जेन्युइन राइडर्स बहुत कम मिले मुझे। फिर ये करते कराते 2-4 महीने के बाद मुझे लगा कि यार देयर इज अ लैक ऑफ नेटवर्क। बाइक का नेटवर्क भले फेसबुक है, बट एक लैक है नेटवर्क का। अब कीड़ा निकला कि चलो यार, नेटवर्क अगर नहीं है तो हम बना लेते हैं। तो नेटवर्क नेटवर्क क्या बनाते हैं। प्रॉब्लम है, तो So that नेटवर्क that बना is how लेते the हैं। idea of Bikers Club Network was born. यस यस। सो Okay. वो कंटिन्यू करूँ या फिर और क्वेश्चन पूछना है No, तुमको no, उसमें? no, no. हाँ, That was my ओके ओके। next question actually. हाँ, सो तभी नाम बाइकर्स क्लब नहीं था उसका। Yeah. मैं सोचा, नाम तो मुझे पता भी नहीं क्या रहेगा उसका। तो फिर Okay. आई सेड कि चलो एक्सप्लोर इट। तो मैंने एक नेटवर्क बनाया। अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ बीकॉम गाय। ओके, अब हुआ क्या कि अगेन मेरा मेरा जो सेटिस्फेक्शन रेशियो है भरत, बहुत हाई है। मैं जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होता हूँ कोई भी चीज को Okay. लेके। Yeah. तो मैंने जस्ट डायल से और फिर बाद में बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, भाई कोई कोई डेवलपर है तो बता जो सॉफ्टवेयर बना ले मेरा, ऐसा वैसा। तो काफी लोग मिले, और उस टाइम पे वहीं पे नया नया एक एप्लीकेशन आया था, कैस्ट्रॉल पावर बाइकिंग करके Castrol एक power एप्लीकेशन biking. आया Yeah. था। Correct. तो कैस्ट्रॉल पावर बाइकिंग ने, वो मैंने डाउनलोड किया। मतलब कि यार I think जो मैं Castrol देख, power biking is being backed by XBHP, I believe. नहीं XBHP का नहीं था, XBHP का किधर भी नाम नहीं था। XBHP का अलग स्टोरी है, मैं बाद में Okay. बताता हूँ। Okay. सो कैस्ट्रल पावर बाइकिंग का एप्लीकेशन देखा, मैंने कहा, यार ये एक बेस बना सकते हैं इसको। ऑल्दो मुझे उसका लुक एंड फील नहीं अच्छा लगा था, ग्रीन कलर का था, बट उनकी ब्रांडिंग वैसी थी तो उनको वो करना था। बट वो मुझे लगा, तो मैं वो एप्लीकेशन लेके घूम रहा हूँ। Okay. मैं डेवलपर्स को मिला, देख भाई मुझे ऐसी एप्लीकेशन बनानी है। लोग बोल रहे थे कि भाई बना लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, चलो हो जाएगा, मतलब बजट बताओ कैसा है। तो आया तो कुछ का बजट मुझे समझ में नहीं आया। किसी किसी लोग के साथ मैंने बोला चल ठीक है, बजट ठीक है, पर अपन बैठते हैं कैसे करेंगे। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बैठे तो मुझे लगा कि यार ये बंदा नहीं कर पाएगा। Okay. तो वहां पे ये हुआ। तो ऑलमोस्ट मैंने 10 डेवलपर्स के साथ, 10 कंपनीज के साथ मीटिंग की, और इवेंचुअली मुझे नहीं जमा। तो लगा कि अभी यार क्या करें। फिर एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मुझे एक बंदा मिलता है उसका नाम है सुनील, सुनील कुंभार, Okay. मराठी का है। सो अब वो भी फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा था, उसके पास जॉब नहीं थी। क्यों जॉब नहीं थी? वो डेवलपर था, पर उसको इसके पास डिग्री नहीं थी। वो अच्छा। 12वीं पास Okay. बंदा। ओके, उसके पास डिग्री नहीं थी। जहाँ पे जॉब करता था उसको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो बोले थे कि भाई तू है अच्छा, पर तेरे पास डिग्री नहीं, इसलिए तेरे को प्रमोशन नहीं मिल सकता। ओके, Okay. तो उसने वो उस गुस्से में जॉब छोड़ दी। अब वो घूम रहा था, तो अब मैं भटक गया, उसको मिल गया, उसके साथ आइडिया शेयर किया। तो वो बोलता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, उसने कुछ मुझे इनपुट्स दिए, और मैं बोला कि सही है बंदा, यार ये बंदा कर लेगा। तो उसको तभी भी पता नहीं कि वो ये करने वाला है, वो तो जस्ट एज अ फ्रेंड की तरह मुझे बता रहा था। तो मैं कि Okay. ये मैं जो चाह रहा हूँ ये समझ पा रहा है। ओके, और जैसे तुम जानते हो, तुमने देखा मैं नेविगेशन और ये सब जो Yeah. किलोमीटर्स का ये सब था, तो वो सब कुछ समझ नहीं पा रहा था उस टाइम पे, जो उसको मैं समझाया था। उसने बोला कि ये हो सकता है। तो मैंने चल तू ही कर ले। बोलता सर मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो कोई डिग्री नहीं है। बोलता मैं तो प्रोग्रामिंग यूट्यूब को देख देख के सीखा हूँ। Okay. ओके, बट हाँ मैं कर सकता हूँ। मतलब ठीक है ना, तू सीखा है, पर तेरे को, तू मुझसे तो बेटर है ना, तेरे को आता तो है कोडिंग, तो Yeah. लेट्स डू इट। तो अब वो दूसरा बताता हूँ, वो बंदा नाइट ब्लाइंडनेस है उसको, Okay. उसको रात को दिखता नहीं है, उसको अच्छा। अंधेरे में नहीं दिखता, ट्यूबलाइट में दिखता है उसको। Okay. और वो
जब जिसको दिखता नहीं है तो लिप रीड भी, मतलब वो करता है, थोड़ा सा उसको सुनने में प्रॉब्लम है तो वो अच्छा। हमेशा मेरा लिप रीड करके करता था, बट उसका विल पावर सॉलिड। मैं बोला कि चलो करते हैं। तो एक छोटा सा ऑफिस था, लेट्स डू समथिंग टुगेदर वहां पे। अब देखते देखते मैं और वो दोनों हम्म। बैठे हैं, और ऑलमोस्ट समझ लो ना कि आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, 3 नवंबर 2015 को हम लोग ने स्टार्ट किया। ओके। 3 नवंबर 2015। और 6-7 महीना लगा, तो हम लोग ने एक स्ट्रक्चर बना दिया 6-7 महीने में। और उसी बीच में एक एडवर्टीजमेंट मैंने देखी कि स्टार्टअप इंडिया की, अच्छा। कि बैंगलोर में हो रहा है स्टार्टअप इंडिया। तो ओके। ऐसा मैं बोला चलो यार अपन भी एक स्टार्टअप ही है, करते हैं। तो अपनी औकात टेस्ट कर लेते हैं, हम्म। वेयर वी स्टैंड। तो मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन फॉर्म भर दिया कि भाई मेरा ये स्टार्टअप है। अब तक मेरी कंपनी भी फॉर्म नहीं हुई थी, कोई प्राइवेट ओके। लिमिटेड कंपनी नहीं थी। ओके। मैं से वो मेरे आर्ट हाउस जो इवेंट कंपनी के नाम पे सब कर रहा था, मैं सोचा अच्छा। देखेंगे, मेरे को पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो मैंने डाल दिया फॉर्म भर के, एंट्री डाल दी, मेरा आइडिया वाइडिया जो था वो थोड़ा सा यूआई बना था, उसके फोटो वोटो डाल दिए, सब चीजें हो गया। एंड छोड़ दिया, मैंने भूल गया उसको। और उसके बाद वो होने के बाद अराउंड एक हफ्ते के बाद आई स्टिल रिमेम्बर श्रेया चक्रवर्ती, शी स्टिल इन माय फ्रेंड लिस्ट, बातें ओके। होती रहती है। उसका मुझे फोन आता है कि योर स्टार्टअप इज बिन सिलेक्टेड आउट ऑफ थ्री अच्छा। थाउजेंड एंट्रीज 3,000 एंट्रीज में से योर स्टार्टअप इज बिन सिलेक्टेड। नाउ वी आर सेग्रीगेटिंग ऑन टेलीफोनिक सेग्रीगेशन, फोन पे वो लोग अब मुझे बात करना है, समझाना है। तो ओके। मैं जिम में था उस टाइम पे, सुबह सुबह उसका फोन आया 10 बजे। मैं जिम छोड़ के बाहर आ गया, मैं बोला कि चलो भाई इससे बात कर लेते हैं। 1 घंटा फोन चला उसका। 1 घंटे में उसको मैंने समझाया, शी वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड। बोलता कि ओके आई विल कॉल यू आफ्टर 2 डेज, बात यहाँ पे खत्म होगी। 2 दिन के बाद उसके बॉस का मुझे फोन आता है, अच्छा। बोलते कि राहुल, ओके यू बीन सिलेक्टेड इन टॉप 100 लिस्ट, टॉप 100 ओके। आउट ऑफ थ्री ओके। थाउजेंड तो यू आर इनवाइटेड टू बैंगलोर, बैंगलोर में हमारा इवेंट हो रहा है स्टार्टअप का, तुमको आके वहाँ पे आना है। मैं बोला कि ठीक है चलो बैंगलोर चलते हैं, ऐसे भी बहुत हम्म। ट्रैवल किया तो बैंगलोर भी जाके आते हैं। ओके, सो बैंगलोर गए। और बैंगलोर में अब मैं अपने टीम, मतलब सुनील को ये बोल रहा हूँ कि भाई देख, अब अपॉर्चुनिटी मिली है, देखते हैं। आई एम वेरी होपलेस, आगे क्या होने वाला मुझे नहीं पता है। पर प्रेजेंटेशन बनाया, थोड़ा बहुत इसका एक प्रोटोटाइप बना दिया था। एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट नहीं होता, पर प्रोटोटाइप बना लिया था मैंने तब तक। तो ओके। मैं चलो जाते हैं वहां पे। अब वहां पे जा रहा हूँ तो पूरा समंदर बैठा हुआ है वहां पे। हम्म। वहां पे देख रहा हूँ कि भाई कोई एक्स गूगल एम्प्लॉई है, कोई एक्स याहू से, कोई आईआईटी से, कोई आईआईएम से, एक से एक राइट। भारी भारी स्टार्टअप लेके आए हुए हैं। मेरी हम्म। फट गई वहां पे। मैं बोला कि भाई यहाँ पे अपना काम नहीं, एक बीकॉम ग्रेजुएट, वो भी एक छोटा सा सोशल मीडिया का एप्लीकेशन बाइकर को लेके आ रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। अब आ ही गए तो पीछे नहीं हटना है, चलो कुछ नहीं, खाना वाना खा के वापस आ जाएंगे वहां से बैंगलोर से, और क्या है, क्योंकि सब कुछ था वहां पे। हम्म। तो चलो ठीक है। फिर वहां पे भी एक राउंड हुआ। वहां पे ये राउंड हुआ कि आपको जो जूरीज होते थे उनके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन ये सब था। तो वो राउंड हुआ, तो आई क्लियर्ड दैट, और मैं टॉप 45 में आ गया। ओके। और टॉप 45 को पिचिंग का टाइम दिया था 3 मिनट का। ओके, अच्छा। सो पिचिंग का टाइम था 3 मिनट का। तो मुझे उसने पहले ही बता दिया था, श्रेया ने, कि यू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन एंड यू कम देयर। हो सकता है कि तुमको पिचिंग का टाइम मिल जाए करने के लिए। तो मैं वो प्रिपेयर करके ही गया था। तो पिचिंग का टाइम अभी, मैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन से गया था और पिचिंग का टाइम मिल गया। मतलब चलो अब पिचिंग। अब वहां पे 45 स्टार्टअप को पिचिंग का टाइम दिया था, उसको कुछ 22-23 के हिसाब से उन लोग को 2 दिन में डिवाइड किया था, कि एक ओके। दिन में 22 लोग करेंगे, दूसरे दिन में। तो लकीली मेरे को सेकंड डे का टाइम मिला, अच्छा। फर्स्ट डे नहीं। मतलब चलो देखते, कभी जिंदगी में ऐसे आईटी रिलेटेड पिचिंग कभी की नहीं थी मैंने। मतलब चलो दूसरों ओके। को देखते हैं वो लोग क्या पिचिंग करते हैं क्या नहीं। फिर चलो एक मौका मिल गया सेकंड डे का। अब सेकंड डे मेरा टाइम आता है, अब मैं पिच कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, आई वॉज द ओनली गाय कि जो सोशल मीडिया में था, बाइकर्स नेटवर्क सोशल मीडिया। ओके। बाकी सब अपने अपनी आइडियाज लेके आए, ई कॉमर्स लेके अलग अलग आइडियाज लेके आए, तो मैं सोशल मीडिया में लगा। सोशल मीडिया, अच्छा। मेरे को ज्यूरी ने सीधा एक ही क्वेश्चन पूछा कि भाई तू सोशल मीडिया लेके आया है, जहाँ पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पे गूगल है, यूट्यूब है, तू कहाँ स्टैंड कर रहा है, तू कैसे हम्म। कर रहा है? मैंने, सर मेरा वो कंपटीशन है ही नहीं। ओके। मेरा वो कोई कंपटीशन, फेसबुक है और समंदर है,
बट फेसबुक में आप देखो कि पूरे सब लोग मिलेंगे, बट एक निश टारगेटेड एरिया आपको नहीं मिलेगा, और फ्यूचर है निश टारगेटेड डेटा का। तो राइट। मैंने पूरा डेटा खोल के दिखा दिया, जैसे आई टोल्ड यू कि आई रिसर्च अ लॉट, तो मैंने पूरा बाइकर्स का डेटा बना दिया था कि ओके। इंडिया में टोटल 18 करोड़ बाइक है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2016 की बात है अभी, ये मार्च 2016, ओके। 26-27 मार्च आई थिंक सो, हाँ। सो उस टाइम पे 18 करोड़ बाइक्स थी, न्यूली आरटीओ रजिस्टर्ड बाइक्स एज पर इंडियन गवर्नमेंट डेटा। एंड उसमें मोपेड्स कैटेगरी, स्कूटी कैटेगरी छोड़ दो, उसके अच्छा। अंदर उसके अंदर सेकेंड हैंड बाइक्स भी छोड़ दो। ओके, सिर्फ 18 करोड़ जो थी वो न्यूली रजिस्टर्ड बाइक थी। अगर सेकेंड हैंड बाइक ये सब मोपेड अगर डाल दो तो दैट कम्स अराउंड 40-45 करोड़। ओके, ऐसा था। मैंने ये डेटा बहुत है मेरे लिए पिच करने के लिए, और ओके। डेटा दिखा दिया उन लोगों को। और देन एज पर सीएजीआर रिपोर्ट ऐसा था कि हर साल इंडिया में 1.5 करोड़ बाइक ऐड होती है। हम्म। तो मैंने चलो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैंने ये डेटा दिखा दिया कि देखो ये मार्केट है मेरा, और आगे जाके मैं इसके अंदर ये भी सोशल मीडिया, आगे जाके इसमें ई कॉमर्स भी करूंगा, इवेंट्स। सबने पूछा कि तुम्हारा रेवेन्यू मॉडल क्या है, ओके। मैंने कहा, "काय का रेवेन्यू मॉडल, मुझे पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है।" तो मैंने चलो दिखा देते हैं। ई कॉमर्स दिखा दिया, इवेंट्स दिखा दिए, फिर बाद में बहुत सारी आइडियाज, 5 साल का पूरा प्लान करके गया था। अच्छा। ओके, और वो चीज दिखा दिया, एंड एवरीबडी क्लैप्ड। चलो ठीक है, प्रेजेंटेशन पूरा वीडियो ऑडियो बना के गया था, वो भी दिखा दिया। तो फिर चलो मैं लगा कि चलो कुछ होगा अच्छा। फिर बाद में लंच टाइम पे सारे जो ज्यूरीज थे, नैसकॉम से थे, कोई कोई अलग केलारी कैपिटल से कोई थे, सबसे आए थे, वो लोग ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। मैं हवे में, वाह ओके। भाई ये सब इंटरेस्ट ले रहे। ओके, सो मतलब चलो अच्छी बात है। तो मैं बात बात करना शुरू कर दिया, मतलब कि ये है वो है। और उन लोग ने फिर बाद में एक ही पॉइंट बोला, तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? मतलब आर्ट हाउस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कंपनी क्या है तेरा, स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का? ओके। कुछ नहीं। बोलते कि एक काम करो, पहले तुम्हारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल दो, अच्छा। ओके, फिर आना हमारे पास। ओके। ओके, मैंने अच्छा ठीक है, ये भी जरूरी होता, मुझे पता नहीं था। ओके, तो अच्छा। मैंने चलो ये भी कर लेते हैं। सो अब एप्लीकेशन का नाम भी नहीं रखा था मैंने, तभी मोटा मोटा बाइकर्स ब्रदरहुड रखा था, क्योंकि ब्रदरहुड बहुत फेमस है, तो राइट। बाइकर्स ब्रदरहुड का जैसा नाम था, ऐसा कुछ। अब हुआ क्या, वो इवेंट में फिर हो गया, पूरा दिन खत्म हो गया। रात को हम लोग मस्त हमें चिल आउट करे, वो पार्टीज थी, सब ड्रिंक विंक ले रहे, सब मस्त में। हम्म। और अचानक से अनाउंस होता है, बेस्ट आउटस्टैंडिंग अवार्ड गोज टू बाइकर्स, मतलब आर्ट हाउस प्रोडक्शन बाइकर्स। तभी क्लब नहीं था, बाइकर्स ब्रदरहुड ऐसा था, हाँ। ओके। तो मैं लगा कि मैं देख रहा हूँ कि किसको बुला रहा है, फिर मेरा दोस्त बुला रहे, तेरा नाम हुआ है अनाउंसमेंट। अच्छा, मैं अच्छा। जीता। अरे, तो मैं गया, मैं शॉक में अभी भी, यार मेरे को कैसे मिल सकता है यार, इतने सारे सब धुरंधर लोग हैं, उसमें मेरे को मिल गया। हम्म। तो मैं उसको पूछा, जो उसको जो ऑर्गेनाइजर था, भाई ये मेरे को मिला कैसे? बोलता है कि तू ही इतना करेजियस निकला जिसने सोशल मीडिया में जो एंटर किया, स्टार्टअप लेके आया, और जो ज्यूरीज ने जो क्वेश्चन पूछे थे वो सब तूने बराबर से किया। ज्यूरीज का डिसीजन है कि इंडिया का सोशल नेटवर्क होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ इट्स गुड आइडिया। ओके। तो चलो अवार्ड मिल गया अपने पास, तो ठीक है। तो मैं अगेन फुल कॉन्फिडेंस वापस आया मुंबई में। मैं अपने ये सुनील को बोला, भाई अपने को अवार्ड अवार्ड मिल गया है, अब तो अपना अपना औकात टेस्ट हो गया है, तो हम लोग राइट डायरेक्शन में। ओके, चलो, तो कहीं राइट, तो सक्सेस मिल गई। हाँ कहीं तो सक्सेस मिली, औकात टेस्ट हो गई है। अब या। इतने बड़े बड़े ज्यूरी ने भी गो हेड बोल दिया, तो मतलब कुछ तो है अपने इसमें। चलो तो अभी लग जाओ काम पे, बनाओ इसको, प्रोटोटाइप को रियल एप्लीकेशन में बनाओ। तो फिर बाद में वो जर्नी वहां से शुरू हुई वापस से। वाह। अब वो जर्नी ऐसी थी कि इतना एप्लीकेशन का बना, अब करते करते मैं भी आधा कोडर बन गया सारा। उसके साथ मैं और वो 2 जन मिलकर रात रात भर जाग के हम लोग यही करने का, ओके। दिन में 11-12 बजे बैठने का, रात को 4-5 बजे तक काम करने का ओके। कंप्यूटर पे, हम्म। और यही सब पूरा बनाने का। अब फिर बाद में देखा कि चलो एप्लीकेशन तो थोड़ा हो गया है, अब इसको टेस्ट किया जाए। अभी So इसका how much नेविगेशन ये time सब did you बनाया। take for developing this entire app? टोटल देखो, हम लोग दोनों नोवाइस थे, हम लोग को टोटल मिला के अराउंड 18 महीना लगा इसको बना Okay. बना के, 18 मंथ्स। Okay. आई वुड से 18 मंथ्स इंक्लूडिंग रिसर्च टाइम, रिसर्च Okay. R&D ये सब किया उसका। End बट to जो end. कोर End कोडिंग to थी, end. हाँ कोर कोडिंग थी, वो सब अराउंड एक साल तक के आसपास चला था, वन Okay. ईयर ओके। Yeah. तो अब उसको बोला टेस्ट किया जाए। अब जो नेविगेशन है वो एक्यूरेट तो आना चाहिए। Hmm. तो अब टेस्ट करने के लिए वो बंदा कैसा था पता है, कि बाइक पे टेस्टिंग हो नहीं पाती थी, क्योंकि वो बंदा अपना लैपटॉप लेके बैठता था,
क्योंकि ओके। तभी भी हम लोग लैपटॉप से नेविगेट करते थे, मोबाइल भी रहता था, हम लोग 3-4 मोबाइल लेके बैठते थे, और कुछ भी अच्छा प्रॉब्लम हुआ तो लैपटॉप पे वो कोडिंग में चेंज किया, वापस टेस्ट किया। तो अच्छा। बाइक पे टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी, इसके लिए हम लोग को कार में टेस्टिंग करनी पड़ी हम लोग को। ओके। तो पूरा मैं और वो टोटल हम लोगों ने 4 महीना टेस्टिंग की, 10,000 किलोमीटर घूमे हम लोग सिर्फ अच्छा। टेस्टिंग के लिए, अलग अलग टेरेन पे, ये है वो है। और इवेंचुअली हम लोग 96 to 97% एक्यूरेसी पे पहुंचे। सो ओके। वेयर वाज दिस इन मुंबई itself? हाँ, मुंबई पुणे, कभी मुंबई पुणे, कभी हम लोग वहां पे गए महाराष्ट्र के, जहाँ पे वो ये क्या बोलते हैं, लोनी। लोनी, यस लोन, या। हाँ वहां पे गए, गणपति के दर्शन के, औजार लोनी, ये सब जगह। मतलब चलो यार, तीर्थ धाम भी कर लेते हैं हम लोग, जाए तो रहे, टेस्टिंग भी करे तो साथ साथ में मंदिर वंदिर भी होके आते हैं, ओके। तो गणपति पापा का आशीर्वाद मिल जाए। तो ठीक है, हम लोग वो सब करे, और मैं और वो चला रहे हैं मस्त। अच्छा। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वो लैपटॉप लेके बैठा है, सामने 2 मोबाइल पड़े हुए हैं, हम लोग किलोमीटर टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे एरर्स, फिर कोडिंग प्रॉब्लम, ये वो ये, फिर बाद में कहीं पे रुके तो फिर उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे, यहाँ पे 10 कॉल कर रहे हैं, फिर इवेंचुअली वो चीजें एक्यूरेसी हम लोग को मिली 96 to 97%। मेरा ओके। हेल्थ बैंड था कि 99 to 100% पे जाए, बट देन रिसर्च करने पे पता चला कि पॉसिबल नहीं इंडिया में 100% पे जाना, इवन राइट। गूगल मैप या। भी 100% दे नहीं पाता कभी। हम्म। तो मिला चल ठीक है यार, 97% ही सही, ठीक है, बना दिया उसको। अब बना दिया तो अब इसको बना, बहुत रॉ था, तुमने देखा हुआ है मेरा एप्लीकेशन शुरुआत या। में, या। लॉन्च तो कर दिया उसको। अब लॉन्च करने के बाद उसको मैंने सोचा, अब इसको यूज कौन करेगा, अगेन हम्म। बना तो दिया, अब उसको डाउनलोड कहाँ से करवाया। ओके। अगेन मेरे को दिखा फेसबुक, वही एक सहारा था, फेसबुक। तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। अब तक मेरे काफी 2200-2300 फ्रेंड बन चुके थे, हाँ ऑलमोस्ट इतने बन चुके हैं। चलो यार, कोई तो अच्छा राइडर निकलेगा इसमें से, हम्म। चलो अप्रोच करो उनको। तो आई क्रिएटेड अ पेज, बाइकर्स क्लब पेज, जो अभी इतना चल रहा है, वो पेज तब बनाया था मैंने। ओके। ओके। तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, सबको इनवाइट भेजा, सबको मैंने एप्लीकेशन को लिंक भेजा, उसमें से कुछ लोग हुए डाउनलोड, कुछ लोग नहीं हुए, कुछ लोग ने क्रिटिसाइज किया, और फिर धीरे धीरे करते करते होना शुरू हुआ। देन मैं बोला कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, अब इसको प्रमोट भी करना पड़ेगा। तो गूगल पे प्रमोट करना शुरू किया उसको, और डाउनलोड्स आना बहुत सही तरीके से शुरू हो गया। एक टाइम था जब हम लोग को 12-13 हज़ार डाउनलोड्स एक महीने के मिलते थे, 12-13 हज़ार डाउनलोड्स एक अच्छा। महीने के। ओके। ओके, उतना भी मिला हुआ है। तो वो चीज़ हुई, और उसी दौरान तुम्हारा से भी कांटेक्ट हुआ, तुमने या। भी डाउनलोड किया, ये सब चीज़ राइट। हुआ। अब मेरा था कि मुझे आगे बढ़ना है, तो कैसे, मैं सबको कॉल करता था कि भाई करेक्ट। तुम या। यूज़ कर रहे हो, या। तुम रिव्यूज बताओ, अपने फीडबैक हम्म। बताओ, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, नेविगेट करो, कहीं पे एरर आ रहा है तो बताओ। तो यू वोंट बिलीव, मेरा तब तक का डेटाबेस जो भी था, उसमें से ऑलमोस्ट अराउंड, मैंने उस टाइम पे 8 से 10 हज़ार लोगों से डायरेक्टली टच में था मैं, 8-10 हज़ार लोग वाह। जिसको मैं कॉल करता था। मेरा लिस्ट होता था कि आज ये जितने भी लोग ने डाउनलोड किया, तो मेरे पास डेटा हम्म। आता था, उनका प्रिंट आउट निकलता था, ये नंबर है, चलो भाई अब इसको कॉल करो। तो ओके। कितने लोग तो ऐसे होते थे जिन लोग ने डाउनलोड किया पर यूज नहीं किया, तो मैं उनको अच्छा। समझाता था कि भाई ये है, यूज करो, ट्राई करो। तो वो सब करते करते एक बाइकर्स लोग के साथ मेरा एक इंटरेक्शन शुरू हो गया, जो रियल में, उसमें से काफी अच्छे अच्छे बाइकर्स लाइक यू, राइट। काफी लोग मेरे से जुड़ने लग गए। हम्म। फिर कुछ लोग ऐसे हो गए कि अब ये हो गया है तो यूज करना शुरू हो गया, रिकमेंडेशन शुरू हो गई। तो मेरा कजिन है, उसको विक्रम नाम है, उसको मैं मिला, वो भी आईटी में, गेमिंग सेक्टर में है। उसको ओके। मैंने बताया तो उसने मुझे एक आइडिया दिया कि राहुल, ये सब सही है, फेसबुक बहुत बड़ी जायंट है, तो हम्म। तुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि तुझे एंगेजमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, हम्म। कि तेरे एप्लीकेशन लोग क्यों यूज करें, एक रीजन देना पड़ेगा एप्लीकेशन यूज करने में। राइट। तो मतलब क्या कर सकता हूँ बता। तो उसने बोला कि कुछ ऐसा के करके कुछ माइलस्टोन हो जाए, कुछ ऐसा, कुछ गिफ्ट हैम्पर हो जाए, ऐसा ये हो जाए, हो जाए। तो मुझे आइडिया क्लिक किया कि भाई अपना नेविगेशन है, तो चलो राइड इन अर्न शुरू करते हैं, बाइक चलाओ पैसा कमाओ। ओके। अब मैं बोला कि चलो ये बाइक चलाओ पैसा कमाओ शुरू करते हैं। अब करेंगे कैसे, मेरे पास पैसे तो नहीं कि मैं लुटाऊं इतना। या। तो मैंने एक सोचा कि मैंने गूगल मार्केटिंग बंद कर दी। ओके। जितने मेरे, तब तक मेरे अराउंड, समझ लो ना, कुछ 22-23 थाउजेंड या 25,000 के आसपास यूजर बेस बन चुका था मेरा। ओके। राइट। सो मैं बोला कि चलो इन्हीं लोग के साथ खेलते हैं। अब बस हुआ, अब गूगल के साथ मार्केटिंग करके
कुछ लोग डाउनलोड करते हैं, अनइंस्टॉल कर लेते हैं, तो उससे अच्छा जो है अपने पास उन लोग के साथ बातें करते हैं। तो मैंने ऑफर डालना शुरू किया कि 10 दिन के लिए पहले ऑफर डाली कि दस So दिन that is बाइक when you चलाओ। started that Paytm payback. पेटीएम पे बैक, यस, कैशबैक। Yeah, I ओके, remember that. मतलब 10 दिन शुरुआत की कि चलो Yeah, 10 दिन में आपने जितना किलोमीटर चलाया उसका ये परसेंट 10% से शुरुआत की थी, फिर 20% हुआ, ये सब सब चीज हुई yeah. और वो हिट हो गया। Okay. हिट हुआ वो, लोगों का बात फैलना शुरू हो गई, अरे ये ऐसा एप्लीकेशन जिसमें बाइक चलाने का पैसा मिलता है। और जेन्युइनली मैं जब ऑफर खत्म होती थी तो मेरे पास वो एक्सेल शीट होती थी। अब उनको मैं बोलता था कि भाई तुम्हारा पेटीएम नंबर दो, तभी तक मैंने इनबिल्ट नहीं किया था, पेटीएम Okay. नंबर दो, तुम्हारा कैशबैक देना है तुम दो। तो लगे काय का कैशबैक, किस चीज का, मतलब तुमने बाइकर्स क्लब एप्लीकेशन चलाई, तुम कैशबैक जीते। लोग मुझे फ्रॉड समझते थे, अरे भाई ये कुछ तो फ्रॉड कर रहा है ऐसा वैसा। अच्छा, okay. तो बोल रहे थे कि, पर कुछ कुछ लोग थे जो बिलीव कर रहे थे और उनको जेन्युइनली पैसा मिला। ओके, फिर Okay. बात फैलना शुरू हुई। मैं लगा ये नहीं होगा यार, ये प्रॉब्लम है कि मतलब मैं कॉल कर करके पेटीएम नंबर मांग रहा हूँ, उससे हाँ, अच्छा एक काम करते हैं अपनी एप्लीकेशन में ही डाल देते हैं। जब ऑफर आएगी तभी उसमें पॉपअप करेगा कि भाई प्लीज पुट योर पेटीएम नंबर, कि right. कैशबैक जब जीतोगे तो तुमको मिलेगा। तो वो डालना शुरू किया, तो फिर लोगों ने उसने डालना नंबर शुरू कर दिया। Okay. फिर बातें फैली, काफी लोग जुड़े और वो हिट हुआ। आई स्टिल रिमेम्बर, महीने में कभी कभी मुझे 20,000, 25,000, 30,000 में कैशबैक बांटता था। अच्छा, 30, 35, 35,000 मेरा कैशबैक में बटने में जाता था। wow. बट मुझे लगा कि यार कैसा ना कि एक जगह पे, वैसे भी मैं गूगल में मार्केटिंग करता था, वहां पे 20-25 हजार मेरा खर्चा होता ही था। नहीं, उससे अच्छा वो बंद कर दिया, तो मैं Right. अगर जिसको पैसा दे रहा हूँ तो दैट गाय बिकम्स माई लॉयल यूजर। Correct. ओके, क्योंकि Yeah. उसको पैसा मिला है, तो इवेंचुअली मैं बैलेंस ही कर रहा हूँ। Hmm. अब वो बातें फैली 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 और मेरा जो यूजर बेस था वो सीधा 75,000 पे चले गया। ट्वेंटी टू Okay. थाउजेंड से 75,000 Wow. के आसपास चले गया यूजर बेस। मैंने चलो यार मजा आ रही है, अब तो कुछ हो रहा है। तो मैंने चलो यही इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो तब तक तो तुम्हारे से भी काफी बातें बातें होती थी मेरी, तुमको भी Right. पता, मैं तुमको कॉल करता था, काफी कुछ हो रही थी। अब हुआ क्या, मैं पूरा जर्नी बताता हूँ। उसके बाद हिट हो रहा था सब चीजें और हम लोग इम्प्रोवाइज भी कर रहे थे, हम लोग इसको नए नए फीचर्स भी ला रहे थे, इम्प्रोवाइज कर रहे Hmm. थे। बट अगेन बोलते हैं ना कि जब भी बहुत आदमी को खुशियां मिल जाती है तभी कुछ ना कुछ सेटबैक आ जाता है। ओके, Yeah. सो बहुत अच्छे से चल रहे थे हम लोग। तब तक मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोल दी थी और बाइकर्स ब्रदरहुड का नाम बाइकर्स क्लब हो गया था, ठीक है। Okay. क्योंकि मुझे, आई मेट अ गाय, बाइकर्स क्लब नाम कैसे हुआ, आई मेट अ गाय जो बाइक से कोई रिलेशन भी नहीं है, ही इज काइंड ऑफ एजेड गाय। तो उसने मुझे पूछा क्या करते हैं राहुल, मैंने कि यार ऐसा एक एप्लीकेशन बनाया है बाइकर्स ब्रदरहुड। ऐसा मतलब वो क्या होता है बाइकर्स ब्रदरहुड, मतलब ऐसा ऐसा बाइकर्स होते हैं जो लॉन्ग राइड पे जाते हैं और पैशनेट राइडर्स होते हैं, ऐसा वो सब। लेकिन बाइकर्स ब्रदरहुड कुछ लंबा नाम नहीं लगता है। मैं उसके आर्ग्यू कर रहा हूँ, नहीं ब्रदरहुड तो इन लोग का बहुत फेवरेट वर्ड Yeah. होता है बाइकर्स लोग का, Yeah. ब्रदरहुड ब्रदरहुड Hmm. बहुत करते तो बहुत रिलेट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं राहुल, तो बाइकर्स ब्रदरहुड छोड़, कुछ ऐसा कर कि जो इजी हो, कैची हो। तो मैं बोला क्या हो सकता है, क्लब्स होते तो यार बाइकर्स क्लब कर दूं। सुना हाँ Hmm. कर ले, बहुत अच्छा नाम है बाइकर्स क्लब। तो मैं आया घर पे आके सोचा सोचा यार नाम तो सही है बाइकर्स क्लब, बाइकर्स क्लब अच्छे से होएगा। तो वहां से Right. बाइकर्स क्लब हो गया ये। अच्छा. और बाइकर्स क्लब को फिर मैंने रजिस्टर करवा दिया, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। Okay. ओके, अब ये सब हुआ, सब चीज चल रहा था। फिर एप्लीकेशन को मैंने वापस से स्क्रैप किया क्योंकि पता चला कि बहुत सारे फीचर्स ऐसे थे जो फेसबुक के कॉपीराइटेड थे। Oh. ओके, Okay. सो और वो कहीं पे भी मिलता नहीं गूगल पे, कहाँ पे क्या किसने कॉपीराइट करके रखा हुआ है। अच्छा. तो कॉपीराइटेड थे। तो मैं बोला कि भाई अभी तो अपन तो आसमान पे थे, स्टार्टअप में भी जीत गए, तो अपने तो लगता था $1 मिलियन अपना होने वाला है ये Hmm. कंपनी। तो यार क्या करे क्या करे। फिर मैं सोचा जितनी भी सोशल मीडिया थी सबको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। ये सुनील ने आइडिया दिया कि रिवर्स अच्छा. इंजीनियरिंग करते हैं, कि क्यों लाइक बटन फेसबुक के अलावा कोई और यूज नहीं कर रहा है। तो जब Okay. मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्च किया, तो जो नेटवर्क लाइक बटन को यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं रॉयल्टी पे करते हैं फेसबुक को। अच्छा. और सबके अलग अलग ऑल्गोरिदम है सबके ये। मैं बोला भाई अगर ये हम लोग करेंगे तो अपनी औकात नहीं है कि हम लोग फेसबुक के सामने लड़े, अगर अपने को Hmm. उसने केस ठोक दिया अमेरिका में तो हम लोग तो गए काम से। तो मैं बोला कि चलो यार चेंज करो इसको। फिर चेंज किया, एप्लीकेशन एक तो चल रही है, दूसरा मैं चेंजेस ला रहा था। फिर धीरे धीरे हम लोग ने खुद के टूल्स बनाने शुरू किए, जैसे लाइक की जगह हाई फाई बटन बनाया। फिर हाँ. बाद में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग चेंजेस किए। अब मैं बोला था यार ये तो कहीं पे भी किधर कॉपीराइट लग नहीं रहा है, सब नया फीचर बना दिया हम लोग ने। Hmm. Hmm. तो लेट्स कॉपीराइट इट, मतलब अब मैं कॉपीराइट करता हूँ। Okay. तो मैं आईपीआर लॉयर के पास गया, मैं बोला कि भाई अब ये चीज है कॉपीराइट करनी है।
अब वो हर किसी का अपना बिजनेस है, उसने बोला कि राहुल तेरा अच्छा है एप्लीकेशन, सब चीज सही है, एक काम कर, तो ये भी कॉपीराइट कर, वो भी कॉपीराइट कर, ये ट्रेडमार्क कर, वो ट्रेडमार्क कर, सब दुनिया भर के मेरे सामने कम से कम 2.5 लाख का उसने वो पूरा बिल फाड़ दिया ओह, कि ओके। बाइकर्स क्लब को तू सिर्फ कॉपीराइट मत कर, ट्रेडमार्क में भी जा, रजिस्ट्रेशन कर, ये सब वो सब कर। मैंने लगा यार बात तो सही है, कल हम्म। कोर्ट की मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई और चुरा के लेके जाए। तो राइट। दैट्स द रीजन, जैसे राइड विद प्राइड जो मेरा टैगलाइन है वो कॉपीराइट, या। वो ट्रेडमार्क हो गया, दैट करेक्ट। योर क्लब इज आल्सो यूजिंग। या। वो सब चीजें हुई तो वो ट्रेडमार्क हो गया सारा चीजें। अगेन अब चलो, अब सही चल रहा है, सब चीज अपना नया बन गया, अब कोई कॉपीराइट ट्रेडमार्क का इश्यू नहीं है। तो मैंने 12 क्लासेस में रजिस्टर किया, कॉपीराइट किया, वर्ड मार्क करवा दिया बाइकर्स क्लब को आउट ऑफ हम्म। 45 क्लास, ये सब चीजें हो गया। एंड देन हुआ ये कि सब सही चल रहा था टिल 2018, जुलाई 18 सब सही चल रहा था कि अब तो मजा आ रही है, सब लोग यूज कर रहे। तब तक मेरा कुछ यूजर बेस हो गया था 80,000 के आसपास। ओके। हाँ 80,000 के आसपास यूजर बेस था, और काफी लोग खुश थे, सबको कैशबैक मिल रहा है, सब खुश थे, तो हम लोग भी इम्प्रोवाइज करते जा रहे थे। तो मैंने चलो ये चीजें सही चल रही है। तो उसके बाद अगेन हुआ कि देखो बटरफ्लाई इफेक्ट में जब भी हमेशा बोलता हूँ, हम्म। कहीं पे सुनामी आता है उसका दूसरी कंट्री पे क्या इफेक्ट होता है। तो अमेरिका का इलेक्शन हुआ ट्रम्प का, ओके, उसने राइट। मेरी पूरी बजा डाली। ओके। हुआ क्या कि ट्रम्प तो जीत के आ गया, पर उसके पीछे कंट्रोवर्सी आ गई, डेटा एनालिटिका जो हम्म। कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसको, ट्रम्प को जिताने के लिए बहुत फेसबुक के डेटा को मिसयूज किया है, गूगल के डेटा को मिसयूज किया है, राइट। सब चीजें या। जो हुई थी ये या। सब। अब उन लोग को कोर्ट में घसीटा सब लोगों ने, तो उन लोगों ने अपनी सारी पॉलिसीज चेंज कर दी, ओके। गूगल ने, फेसबुक ने, सबकी टर्म्स कंडीशंस चेंज हुई। और हम्म। स्पेशली जो जीपीएस नेविगेशन यूज करते थे अपने ओके। एप्लीकेशन में, उसकी पूरी चेंजिंग हो गई। तो जीपीएस, हम लोग तो पूरा जीपीएस बेस्ड थे, करेक्ट। और हम लोग के पास कोई सॉफ्टवेयर की टीम तो नहीं थी, लंबी चौड़ी फौज नहीं थी कि हम लोग या। रातों रात चेंज कर दिए। तो उसने इतने सारे चेंजेस कर दिए कि हमारी एप्लीकेशन चलनी बंद हो गई। ओके। बोला कि यार अब तो मुश्किल हो गया, अब सेटबैक आ गया। मैं बोला कि यार अब क्या करें। सो फिर मैं बोला कि और हम लोग ने पहले बनाई थी, हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाई थी, ओके। सो फिर बाद में सोचा कि सब ब्रेनस्टॉर्म किया, यहाँ वहाँ सब किया कि कुछ हो नहीं पा रहा था। इस सबको इफेक्ट होता, ओला उबर सबको इफेक्ट हुआ था, बट वो लोग के राइट। पास पैसे थे, उन लोग ने एक आध हफ्ते में सब सॉल्व कर दिया, हम्म। और हम लोग अटक गए इसमें। तो फिर बाद में उसने, फिर वी केम अ कंक्लूजन कि लेट्स मेक एंटायर न्यू एप्लीकेशन, अच्छा। ओके। तो नया So एप्लीकेशन this was नेटिव the बनाना है। third time that you were planning to हाँ develop. Yeah. थर्ड टाइम नेटिव एप्लीकेशन बनाया। अब वो एप्लीकेशन बनाया तो नेटिव में पूरे चेंजेस करना पड़ा, हाइब्रिड चल रहा था, उसमें इश्यूज आ रहे थे। जैसे आई नो समटाइम्स यू यूज्ड टू कॉल मी एंड से कि यार राहुल तेरा एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, ये है वो Yeah. है। Yeah. तो मैं बोल रहा था कि यार थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम लोग कर रहे हैं काम उस पर, Hmm. ओके। सो नेटिव एप्लीकेशन बनाया। अब नेटिव एप्लीकेशन बनाया तो हम लोग को प्रॉब्लम ये आई, एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। Okay. जो एक्यूरेसी थी वो नहीं आ रही थी कि जो हम लोग ने पहले मेहनत की थी। नेटिव में पूरा यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, काफी सारे Hmm. टूल्स चेंज हो जाते हैं। Yeah. तो हम लोग ने मुश्किल से वहां पे किया था, अब यहाँ पे वापस, अब जरूरत पड़ी कि वापस से टेस्ट करो, 5-6 हजार किलोमीटर चलाओ, ये सब वो Hmm. सब करो। मतलब अब क्या करें। सो फिर भी शुरुआत की हम लोग ने, समहाउ हम लोग 94-95% पे लेके भी आए इसको। बट अगेन Okay. फिर प्रॉब्लम ये आया कि इश्यूज ये आने लगे कि कुछ फोन में एक्यूरेट आ रहा था, एक्यूरेसी आ रही थी, कुछ फोन में नहीं आ रहा था, Hmm. फोन के डिवाइस के प्रॉब्लम हो गए। अब हमारे पास यार डिवाइस, मेरे पास कुछ, मैं 2 डिवाइस, मेरे मतलब एक स्पेयर फोन है ये जो भी है, मेरे फादर का फोन, मेरा डेवलपर के उसने वाइफ का फोन, ये सब 3-4 फोन मिला लिए, बट फिर भी वो सही नहीं हो पा रहा था। बोला कि अब क्या करे क्या करे। तो मैं उसको बोला कि चल करते रहेंगे इसके, अपन लोग इस पे काम करते रहेंगे, अब Okay. कुछ आगे बढ़ते हैं इसके आगे ऊपर। बढ़ते हैं। तो हाँ आगे बढ़ते हैं। और तब तक हम लोग 95% तो एक्यूरेसी आ गए थे। मतलब जो फोन में नहीं चलता वो देखेंगे, जो यूजर कंप्लेन करेगा वो फोन हम लोग देखेंगे, अच्छा चलो रेडमी में नहीं चल रहा तो रेडमी का निकालो। अब Hmm. जो यूजर का कंप्लेन आएगा ये फोन में नहीं चल रहा, तो हम लोग को पता चल जाएगा ये फोन में नहीं चल रहा है, Right. तो वो फोन का निकालो कि क्या प्रॉब्लम है फोन में। ऐसा Hmm. था, जब होगा तब देखा जाएगा। तो आई स्टिल रिमेम्बर तुमने बोला था 1+5 में नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ तो था, Yeah. ऐसा Yeah. तुमने लिखा Yeah. था। फिर बाद में ऐसा हुआ कि एंड्रॉयड का प्रॉब्लम देखो क्या से क्या आ रही है। एंड्रॉयड ने अपने प्लेटफॉर्म चेंज किए, एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम जो, टिल एंड्रॉयड 8 तक मेरा बहुत सही चल रहा था Hmm. एप्लीकेशन। जब एंड्रॉयड 8.1 आया
उसने पूरे जीपीएस के पैरामीटर्स चेंज कर दिए सारे, और Okay. उसके वजह से अगेन हिट हुआ मेरा एप्लीकेशन। साला अभी यार इसमें प्रॉब्लम हो गया, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है। Yeah. सो मैंने कि 8.1 ने बहुत परेशान किया मुझे। 8.1 अभी तो एंड्रॉइड 10 आ गया, अब Right. टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है एप्लीकेशन, बट Okay. स्टिल। तो ये हुआ। अब हुआ क्या देखो आगे, उसके बाद जो मेरा जो बंदा था, वो बंदा, उसको कुछ आई मीन ही बिकेम इल, उसको ऐसा कुछ हो गया अच्छा. कि उसको डायबिटीज था, उसको पता नहीं था। ओके। Oh. और डायबिटीज इस लेवल पे चले गया कि उसका पूरा बॉडी वीक हो गया पूरा। ओके। और ऊपर से उसको थोड़ा सा फिजिकली थोड़ा वीक तो था ही पहले से ही है, और एक टाइम वैसा है कि वो कुछ काम करने के काबिल नहीं बचा, Oh. और Okay. इतना बीमार हो गया कि हॉस्पिटलाइज हो गया। और उसने मुझे बहुत हिट किया, मतलब अच्छा. अराउंड। और मेरा ऐसा एक काम था कि यार अब मैं किसी नए डेवलपर के पास जाऊं, उसके पास से सब डेवलप कर रहा हूँ, समझेगा नहीं समझेगा, बहुत मुश्किल होता था। मैं बोला कि चल यार सुनील, एक काम कर, तू बीमार है ना, कोई बात नहीं, ले ले 2 महीना, हम लोग करेंगे कुछ। आई डोंट वांट टू लूज यू, हम लोग करेंगे आगे कुछ। मोटिवेट Okay. करते रहा उसको। पर मैं अंदर से टेंशन में, उसको मैं मोटिवेट कर रहा था, बट मैं स्ट्रेस में, मेरे पैसे लगे हुए, सर्वर का पैसा हर महीने का जा रहा है। ओके। स्टिल मुझे बाइकर्स क्लब चलाने के लिए 1.25 लाख का खर्चा है एवरी मंथ। ओके। तो इतना सब चीजें चल रहा था, तो मैं स्टिक पे था। तो मैं बोला कि अब क्या करेंगे, और उसको मैं प्रेशर कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो बीमार था। आई उसने रिमेम्बर वो दो टाइम तीन में आई थिंक मेरी भी बात हो रही थी आपसे, तो आपने मुझे बताया था हाँ कि जो डेवलपर हाँ था ही इज टेकन इल एंड बिकॉज ऑफ हाँ, व्हिच द एंटायर डेवलपमेंट हैज टेकन अ हिट. एग्जैक्टली। या. तो वो ऐसा हुआ कि वो पूरा 3 महीना, 3.5 महीना उसने मेरा खा लिया पूरा। ओके। And that is when I think you thought of coming out with the magazines. हाँ, उसका भी बता रहा हूँ। तो दैट वाज अ टाइम जब जुलाई 2018 में हिट किया, जून जुलाई में हिट किया, और फिर उसके बाद तुरंत ही बीमार पड़ गया। तो 3 साढ़े 3 पूरे गए मेरे उसमें। और फिर मैं डिप्रेस्ड, मैं लगा करूं क्या, सर्वर के पैसे जा रहे और इतने यूजर्स है। प्रॉब्लम क्या था भरत, मैं एप्लीकेशन को फ्रीज कर सकता था, पर प्रॉब्लम आ रहा था 8.1 एंड अबव में प्रॉब्लम आ रहा था। Right. टिल 8.0 तक एप्लीकेशन स्मूथ चल रहा था मेरा। Yeah. तो मैं लगा कि अगर मैंने फ्रीज कर दिया तो मेरे जो 8.0 तक के यूजर्स है सारे चले जाएंगे। ओके। Okay. बोला चल अभी ठीक है, 8.1 वालों को समझा देंगे, 8.0 वाले तक तो जब चल रहे हैं चलाने दो उसको। सो वो सब चल रहे थे, और वो एक काफी अच्छा बड़ा यूजर बेस था मेरा टिल 8.0 तक का। तो फिर वो चलाया, और उसके बाद फिर भी डाउनलोड जो एक टाइम पे 12-12 हजार आ रहे थे मुझे हर महीने के, ड्रॉप डाउन टू 2000, 2500, Oh, 3000, अच्छा. इतना ड्रॉप हो गया, इतना अच्छा. ड्रॉप हो गया। मैं परेशान, मैं बोला कि यार अब क्या करें। और लोग अपग्रेड कर रहे थे अपना मोबाइल 7 से 8.0 से 8.1, जैसे Yeah. 8.1 किया एप्लीकेशन बंद चलना, बंद. क्रैश होना Yeah. शुरू हो गया, कंप्लेन्स आना शुरू हो गई। सो मैं बोला कि चलो अब इसका टर्न अराउंड तो करना ही पड़ेगा, बहुत जल्दी करना पड़ेगा, पर ये जब तक ठीक नहीं होता, अपना जो घोड़ा था वो ठीक नहीं होता, तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। Right. तो फिर बाद में मैं डिप्रेस था, और मैंने सोचा कि लेट्स डू समथिंग एल्स, और तभी मैंने प्लेबॉय मैगजीन का एक जो सीरीज था अमेजॉन प्राइम पे वो देखा, Okay. आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। Okay. और मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ उससे, मैं बोला कि यार ये सही है लाइफस्टाइल। एक दिन में पूरा सीरीज खत्म कर दिया मैंने। आई स्टिल रिमेंबर 29th December, दैट वाज अ डे। अच्छा. पूरा डिप्रेशन में मैं सीरीज देख रहा हूँ, और मैं Okay. एकदम सीरीज खत्म होने के बाद चार्ज अप हो गया Charged up. कि यार सही है, चलो कुछ नहीं तो कुछ तो सही। तो मैंने वो 29 दिसंबर को रात को मैंने फोन किया सुनील को, मतलब कि भाई मैं मैगजीन बना रहा हूँ, कुछ ऐसा लाइफस्टाइल मैगजीन। बोले पागल हो गया है, क्या कर रहा है, मतलब अभी मेरे दोस्ती जैसे रिलेशन है। बोले कि सर क्या पागल हो गया, मैगजीन वैगजीन कैसे क्या होएगा ऐसा। चल ट्राई करते हैं। सेम डे अराउंड 8-8:30 में सुनील से बात किया। फिर आई स्पोक टू माई डैड कि पापा मैं ऐसा सोच रहा हूँ मैगजीन करूँ। अगेन बोले अपने खानदान में किसी ने कुछ लिखा नहीं है, तू क्या करेगा मैगजीन वैगजीन, और क्या है ये सब। हाँ ठीक है, तूने स्क्रिप्ट लिखी हो बात अलग है, और वो फिल्म लिखनी अलग बात है, और मैगजीन लिखनी अलग बात है। So that was Rahul Mehta, founder, CEO and editor of Bikers Club Network, one of the passionate bike enthusiasts who is trying to bring the entire biking community across the globe together. If you are a biker or a bike enthusiast, please do visit his website www.bikersclub.in. Thank you all so much for listening to this episode of the podcast show Candid Talks with Bharat V.
If you like the show, please do like, subscribe, and share with others. If listening on Apple Podcast, do not forget to rate 5 stars. If on Spotify or YouTube, do not forget to subscribe and share. इसके साथ हम आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले शो पर एक नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ, नए अंदाज में ऑन कैंडिड टॉक्स विद भरत वी। स्टे होम, स्टे सेफ। दिस इज भरत वत्स साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।